एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बड़े युद्ध विराम समझौते की घोषणा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि दुनिया को कभी भी फिर से युद्ध शुरू होने का डर लगता है, तो कभी अचानक शांति की उम्मीद दिखाई देने लगती है। अब खबर आई है कि दोनों देश पर्दे के पीछे समझौते की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजरायल की रक्षा करते करते अमेरिका का बड़ा मिसाइल स्टॉक भी खाली हो चुका है। यह बात ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अब युद्ध खत्म करना चाहता है? और क्या ईरान भी किसी बड़े समझौते की तैयारी में है? अमेरिका और ईरान के बीच हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि दुनिया को कभी भी फिर से युद्ध शुरू होने का डर लगता है, तो कभी अचानक शांति की उम्मीद दिखाई देने लगती है। अब खबर आई है कि दोनों देश पर्दे के पीछे समझौते की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजरायल की रक्षा करते करते अमेरिका का बड़ा मिसाइल स्टॉक भी खाली हो चुका है। यह बात ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अब युद्ध खत्म करना चाहता है? और क्या ईरान भी किसी बड़े समझौते की तैयारी में है? मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 67 हथियार बरामद और 4 UNLFP उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और CRPF की संयुक्त टीम ने इम्फाल वेस्ट के लामशांग इलाके से 67 हथियार बरामद किए हैं और UNLFP के 4 कैडरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक हाई क्वालिटी ड्रोन जैमर भी बरामद किया गया है। Manipur Police launched a special operation on 25/2026 at Lamsang PS. During the operation, 2 active cadres of UNLFP, namely Haisnam Thomas Singh of Mayang Imphal Kokchai and Arambam Tumtum Singh of Lamsang Haibung Kokpi Mayalikai, were apprehended along with 1 INSAS LMG, 3 INSAS LMG magazines and 14 live rounds. This is suspected to be stolen and it is under the process of verification where it was looted from. While the arrest process was going on, associates of the cadres opened fire at the security forces, resulting in brief exchange of fire. Further, 2 more cadres who were involved in firing upon security forces, namely Ningthojam Rakesh Singh and Chinkhagam Mahesh Singh, were apprehended. On preliminary interrogation of the arrested cadres, they disclosed that they had come to sell the seized weapon on the instruction of self-styled Lance Corporal Nawarem Bijoy, alias Macha of UNLFP. They further admitted involvement in earlier sale of arms and ammunition in exchange for money. Subsequently, based on the follow-up operation, joint security forces comprising of Manipur Police, Assam Rifles and CRPF conducted cordon and search operation at an unauthorized UNLFP camp located at Lamding, in which security forces recovered and secured a large cache of arms and warlike stores, consisting of 29 weapons, comprising AK series rifles, M series rifles, pistols and other firearms. Further, on the morning of 21/5/2026, Joint Security Forces further launched search operations in the vicinity of the camp and heavy warlike stores and additional 38 weapons comprising AK series rifles, M series rifles, sniper rifle, carbine, shotguns, mortars, RPG-7 launcher, anti-drone jammer and a huge cache of explosives
including grenades, were recovered. The public is earnestly requested to report any information related to looted arms or ammunition that they have spotted or have information about to the nearest police station. Your cooperation is vital in maintaining peace and safety and security in this environment for the community. Together, we can help ensure a safer environment for everyone. Advisory I have already stated. If you have any information, you have the control room numbers of Imphal East, West and other districts. We also have an anti-extortion cell whose number we have already popularized. If anything of that information you have, please report it to us. पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड बुरहान हमजा पीओके में मारा गया। पुलवामा आतंकी हमले का बदला पूरा हो गया। 6 साल की देरी ही सही, मगर उसका मास्टरमाइंड मारा गया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का धुरंधर स्टाइल में मर्डर हो गया। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। यह घटना मुजफ्फराबाद में हुई, जहां उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। गोलियों से छलनी आतंकी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आतंकी हमजा बुरहान की मौत पर उसके पिता की प्रतिक्रिया आई है। अलबदर आतंकी हमजा बुरहान के पिता ने कहा कि उसने आतंक रास्ता चुना था, इसलिए उसकी मौत ठीक हुई। जी हां, अलबदर आतंकी संगठन से जुड़े हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके पिता ने बड़ा बयान दिया है। आतंकी के पिता ने कहा कि परिवार ने उसकी वजह से काफी परेशानियां झेली हैं। पिता के मुताबिक हमजा पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान गया था और MBBS करने की बात कही थी, लेकिन वहां जाकर उसने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया। उन्होंने कहा, हमने उसकी वजह से बहुत दुख झेला, अच्छा हुआ वह मारा गया। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसन ने श्री सीमेंट माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर लगे आरोपों को खारिज किया। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिंसोम ने श्री सीमेंट के प्रस्तावित लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है और स्थानीय लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार होगा। Okay, see what happened is, we are always open for discussion. When there is any kind of misunderstanding, we are always there to resolve the issue. But now, those people who are against the public hearing, I think that is wrong. They made it wrong. When we say public hearing means what? To know the mind of the people, the stakeholders, whether you want to have cement factory or not. That is very clear. So if you are against it, go there. Because the provision of the rule, that regulation is very clear indicated that Pollution Control Board has to conduct a public hearing. So the public hearing will prove whether you are in favor or you are against it. Simple. So I would request again these agitators, please don't misunderstand. Please understand the stages of procedures and attend the public hearing, and you raise your concern over there in the public hearing. Because I'm not saying, see, when you say public hearing is what? Public hearing means to hear the grievances, the concerns of each and every stakeholders. So that is very important. मेघालय हाईकोर्ट ने शिलोंग डाउकी रोड प्रोजेक्ट के खराब निर्माण पर NHIDCL को फटकार लगाई। मेघालय हाई कोर्ट ने शिलोंग डाव की सड़क परियोजना के खराब निर्माण कार्य को लेकर NHIDCL को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है और सड़क की हालत बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान को मेघालय के मशहूर अनानस भेंट की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई यात्रा के दौरान यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को मेघालय की जीआई टैग वाली मशहूर अनानास भेंट की। मेघालय की अनानास अपनी मिठास और खुशबू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और नए खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। TVS Ntorq 150, India's first hyper sports scooter, is here. Hyper is a state of mind. TVS Ntorq 150, India's first hyper sports scooter, is here. आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। फांसीडीवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू। पश्चिम बंगाल के फांसीदेवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सीमा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। Within 2 weeks, our bureaucrats, especially the land department, under the guidance of Honorable Home Secretary and Chief Secretary, they are now ready to hand over a portion of land. Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land. स्नेहोभालंग धर ने कहा 2028 में कोई भी नार्थियांग सीट से चुनाव लड़ सकता है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री स्नेहाव भालंग धर ने कहा है कि 2028 के चुनाव में कोई भी नार्टियांग सीट से चुनाव लड़ सकता है और किसी का भी सीट पर एकाधिकार नहीं है। Tanko ingat nang kakonusi jonga na penyelek ununu bakwa teh ngamla mankang. Why do you need to seek permission from me? I am not the owner of that konusi. I am the MLA of that konusi. Anybody who can come, no problem. Coming to my election. सोनम रघुवंशी मामले की सुनवाई मेघालय हाई कोर्ट ने 1 जून तक टाली। 21 मई को राज्य सरकार द्वारा दायर की गई इस याचिका पर दोनों पक्षों के बीच अंतिम बहस होनी थी। राज्य सरकार सोनम रघुवंशी को निचली अदालत से मिली जमानत को तुरंत रद्द कराने के पक्ष में है। दोपहर में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू हुई
तो खराब इंटरनेट और वीसी लैग के कारण जजों और वकीलों के बीच संवाद में लगातार बाधा आई। इसके चलते कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए नई तारीख तय कर दी। इंदौर ईएमएस बहुचर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने हेतु मेघालय पुलिस द्वारा लगाई याचिका पर आज मेघालय हाई कोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई तकनीकी दिक्कतों की भेंट चढ़ गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के दौरान आए नेटवर्क लैग और बार बार हो रहे व्यवधान के चलते अदालत को आज की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जून के पहले सप्ताह 1 या जून 2002 में हो सकती है। पर्यटन मंत्री तिमोथी डी शिरा ने कहा, शिलोंग रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। मेघालय के पर्यटन मंत्री टिमोथी डी शिरा ने कहा है कि प्रस्तावित शिलोंग रोपवे परियोजना पर काम लगातार जारी है और अब तक किसी तरह की नकारात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। Ropeway project, sir. Shillong Ropeway project is going on. You see, but I have never visited the place also, and that project was awarded before I assumed the charge, and now nothing came about this project. So I thought that it is running well. मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने कहा, शिक्षा राज्य के विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा है कि शिक्षा राज्य के समावेशी और समग्र विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ा रही है। Many of our youths will benefit not just from Meghalaya alone, but I hope to see that slowly and steadily this university and the colleges which are under it will become the main point for students to come from all over the northeast and even the country, and that is the kind of quality that we should aspire. I'm also very happy to inform all of you that very soon, and I've announced this in my budget this year, that 2 more colleges will start, and the process for this will start this year itself. The first one is a college for architecture and horticulture and food processing. This college will be right here in East Garo Hills in William Nagar, and we will be handing over the land and all the other facilities to the college, to the university, so that by next year, 2027, we are targeting that we should be able to start the academic session for the agriculture, horticulture, food processing college, and we have finalized the veterinary college, which also is something that I have already promised the state, and this will be in Riboy, in Tridamkulai, where we have large plot of land. We are still discussing with the veterinary department. आप अगर गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर आपका इलीगल घर बनाओगे, इलीगल मस्जिद बनाओगे, तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे ही। वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, तुम्हारे पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का नहीं है, तो तुमको फिर वहाँ ही जाना पड़ेगा। वो हम साफ ही करेंगे। हम लोगों ने चुनाव में ही बता दिया था कि हमको यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गंदगी नहीं चाहिए, तो हम अपने दिया हुआ शब्द पूरा कर रहे हैं। तो सिर्फ बैंड्रा के ही नहीं है, और बहुत कुछ साफ सफाई करना है। तो बैंड्रा के सीख के बहुत सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने अपने बैग पैक करके इधर से निकल जाना चाहिए। रुके क्यों है यहाँ? तो इस तरीके की तकलीफ होने ही वाली है। मरणोपरांत 11 नवंबर सन 2018 छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित दुर्गम इलाका अबूझमाड़। विधानसभा चुनाव के दौरान उप निरीक्षक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ की 35 बटालियन की एक टुकड़ी एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने न सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया, बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए
बहादुर उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती। आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव। खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। थैंक यू। Apex News, India, Northeast.